السلام علیکم ناظرین رات 9 بجے تو قشر خبرنامہ ہیت بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل ٹاؤن ہال لنگیٹ ہندوارس مز آز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف کنونشن ساز کرنا آمت یت مز پارٹی سینئر لیڈر شوکت وٹالی تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یہ اسمبلی انتخابن ہند نتائجن تو والن پنچایتی انتخابن حوالہ کتن دل دن آو تت لیڈرن تو ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن والن پنچایتی انتخابن حوالہ تیاری شروع کریں یت زن یمن انتخابن دوران زیادہ کھت زیادہ لوک نیشنل کانفرنس پارٹی ہندس حقس مز پن ووٹ کرن. یہ آج کا جو یہ ورکرز میٹنگ تھی یہ کنونشن نہیں تھا. ہم نے کچھ سلیکٹڈ ورکرز کو بلایا تھا, چیدہ ورکرز کو, جس میں یوتھ بھی خاصی تعداد میں تھی. آج ایک تو تنظیمی امورات پہ بات چیت کی ہم نے, کیونکہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے تنظیم ہماری مضبوط ہے, وائبرنٹ ہے, تو لوگوں کا بھی اس میں فائدہ ہے. دوسرا ہم نے مبارکباد کی جنرل پبلک کو, یہاں کے ورکرز کو, کہ جس طریقے سے جموں کشمیر کے لوگوں نے ایک مینڈیٹ جو ہے دیا ہے نیشنل کانفرنس کو, ایک زبردست مینڈیٹ, اس کے لیے مبارکبادی کرنی تھی. ایک خوشی کا بھی ماحول تھا. اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ اب عوام کے لیے جو کام کرنا ہے, اس کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ جو ہم زمینی سطح پہ ہمارے لوگ ہیں وہ ایک تعمیری ایک منصوبہ بنائیں اپنے اپنے علاقے کا, تاکہ وہ تعمیری منصوبہ یا ویژن ڈاکیومنٹ یا ایجنڈا آف ڈیولپمنٹ ہم اپنی سرکار کو, اپنے وزیر اعلیٰ کو پیش کریں, جس پہ ہم انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں, یہ جو الائنس ہوئی ہے, الائنس میں یہ اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں. یہاں کی عوام, لنگیٹ کانسٹیٹوئنسی کی عوام, لنگیٹ کانسٹیٹوئنسی کا نیشنل کانفرنس کا کیڈر اس امید میں تھا کہ نمائندہ جو ہے ہمارا اپنا ہوگا, نیشنل کانفرنس کا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں جو یہ جیتنے والے ہیں یا جنہوں نے کچھ ووٹ لیے ہیں, ان کی خوش قسمتی رہی ہے کہ نیشنل کانفرنس کا نمائندہ میدان میں نہیں تھا. ان کی مجھے اللہ تعالیٰ پہ اتنا بھروسہ ہے, اپنے ورکرز پہ, ساتھیوں پہ اتنا بھروسہ ہے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں. یہ کہا کہ وقت بدل گیا, اب جھوٹے وعدے نہیں چلیں گے, کوئی بھی جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتا ہے. اگر ہم نیشنل کانفرنس کے ورکر ہیں, ہم نیشنل کانفرنس کا سپورٹ سسٹم ہے, ہم کام کرنے والے زمینی سطح پہ, لیکن جہاں ہمیں لگے گا کہ ہماری سرکار کہیں کمی کر رہی ہے, کہیں پہ کام نہیں ہو رہا, ہم اس وقت آواز بلند کریں گے عوام کی طرف سے. آپ دیکھیے اتنا بڑا کیڈر ہے, اگر کیڈر کو ہی ہم کھڑا کریں تو پنچایت میونسپلٹی ہم ہی لے جائیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے آنے والے جو بھی الیکشن ہوگا, بالکل ہم نے وہ بات بھی کی کہ جو آنے والا الیکشن ہے ہم نے چھوڑنا نہیں, اس کے لیے کیڈر کو مضبوط کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے دیہی لیول پہ, حلقہ لیول پہ کام کرنا ہے, تنظیم مضبوط ہو کہ وہ یہ جو فیصلے ہیں جیسے الائنس کرنا ہے نہیں کرنا ہے, یہ تنظیمی بڑے فیصلے ہوتے ہیں. ہم زمینی سطح کے ورکر ہیں, آپ زمینی سوال ہم سے کریں, اس کا ہم جواب دے دیں گے. جو ہماری پارٹی کا حکم جب بھی ہوگا ہم پہ وہ پابندی ہے, ہم تیار ہیں اس کے لیے, اور ہم پارٹی کا حکم کبھی بھی نہیں ٹالیں. حلقہ انتخاب شانگس اننت ناگ پہ یہ نیشنل کانفرنس امیدوار ایڈوکیٹ ریاض احمد کامیاب سپد. تج تہذ رہائش گاہ پہ مبارکبادی ہند سلسلہ جاری, یل زن آج قشرن پنڈتن ہند ایک وفدن تہ ریاض احمد خانس مبارکباد پیش کران تمن درپیش مشکلن حوالہ زان تہ دِژ. یپر نو منتخب ممبر اسمبلی ریاض احمد خانن وونمت حلقہ انتخابچ تعمیر ترقی تو لوکن ہند مشکل دور کریں روز تہذ اولین ترجیحات, یت زن عام لوکن راحت واتہ. جہاں تک آپ نے اس سوال کے بارے میں جواب دینا چاہتا ہوں, پوچھا ہے کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہے. میری پرائرٹیز ہے پیس, پراسپیرٹی, آنر اینڈ ڈگنیٹی. یہ سب سے اہم ہے, اسی پر میرا فوکس رہے گا, اور اس میں ہر کوئی بات آتی ہے. جی دیکھیے, جس دن میں نے سیاست جوائن کی اسی دن سے میرے دل میں تھا کہ میں اسی لیے نکلا تھا کہ میں اس علاقے کا ایک ایم ایل اے بنوں اور اس علاقے کو سنبھالنے کی کوشش کروں, اور لوگوں کی جو جائز توقعات ہوں گے ان کو پورا کرنے کی کوشش کروں. یہ پہلے دن سے تبھی جو سیاست جوائن کی تھی. جہاں تک ہماری کانسٹیچوئنسی کا تعلق ہے, آفٹر ڈیلیمیٹیشن یہ شانگس اننت ناگ ایسٹ ہے. بہت سارے کانسٹیچوئنسی سے کچھ حصے نکال کے ایک کانسٹیچوئنسی بنی ہے جس کا نام شانگس اننت ناگ ایسٹ ہے. اس کے اپنے چیلنجز ہیں, اور ایک طرف 10 سال کی گیپ ہے. 10 سال کی گیپ کا بھی ہمیں سوچنا ہے. لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہیں,
लोगों की मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा है, लोगों की मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है हमें हर सूरत में काम में जुट जाना है, क्योंकि अगर इस आवाम को अब राहत देना है हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं अवामुन्नास से, अपने वोटरान से, अपने इलाके के लोगों से गुजारिश करूँगा। आज आपने मुझे वोट डाला, भारी अक्सर से ताउन दिया, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आपने डाल दी, इतने बड़े मैंडेट से मैं आपसे सपोर्ट चाहता हूँ। आप मुझे सपोर्ट 5 साल करिए, ताकि हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मिसाली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे और जम्मू कश्मीर में एक ये वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए जिसमें तरक्की का बोलबाला पहले दिन से होना चाहिए। हल्का इंतखाब सिरगफोर बिजबिहाड़ पे कामयाब उम्मीदवार बशीर अहमद वीरी सज रिहाइश गाह पे ये लोगों तरफ तिमन मुबारकबाद दिन सिलसिल जारी तत बशीर अहमद वीरियन अत मौके पे कत करान वोनमुत ज लूकन सत करना आमत वाद पूरे करनस हवाले यन संजीदा कदम तुलने युत जन आम लूकन राहत वाते येल जन तिमो वोन ज जेलन मज बंद नौजवान हिंज रिहाई तो दोयम तिम वादे यम जन इलेक्शन मंशूरस मज करने आमत तिम पूरे करने बापत इन वाजन सरकार तरफ संजीदा कदम तुलने युत जन लूकन हुंद सह भरोस बरकरार थावने युस भरोस लूको तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पे असम्बली इंतखाबन दौरान करने आमुत। बशीर अहमद वीरन अत मौके पे प्रश्न तो सवाल जवाब दिवान वोनमुत ज तिम मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद तो महबूबा मुफ्ती हुंद सठे एहतराम करान ताहम इल्तिजा मुफ्ती तरफ तिम मुबैन इल्ज़ाम आयद करने यमो सत तिमन सठा मोयूसी सपजमज। मैं चैलेंजेस तो नहीं कहूँगा, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहूँगा। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इस इलाके के लोगों ने मुझे भरपूर साथ दिया, एतमाद दिया, और हर एक के तबके के साथ ताल्लुक़ रख रहे हैं लोगों ने एतमाद दिया, चाहे वो किसी मजहबी जमात के साथ हो, चाहे वो किसी समाजी जमात के साथ हो, समाजी कारकुन से लेके आम लोगों ने मुझे एतमाद दिया है। और ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो बोझ मेरे कंधों पे है, मैं अल्लाह से ही दुआ करता हूँ कि मुझे उनके तवक्कात पे पूरा खरा उतारे। जहाँ मुझे खुशी है कि हमने यहाँ पे अल्लाह ने हमें इज़्ज़त रखी है, वहीं पे एक ज़िम्मेदारी का एहसास है। और अल्लाह से दुआ करता हूँ, अपने साथियों से मदद मांगता हूँ कि आप इस काम में मेरे साथ ही रहिए। जगह जगह हमने पहुँचना है और लोगों के दुख दर्द और मसाइल बहुत सारे हैं, उनको हल करने की कोशिश करनी। एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि लर्निंग प्रोसेस था। इसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ फेस किया। इसमें जेल भी जाना पड़ा, इसमें हार का भी सामना करना पड़ा। इसमें उन जमातों का जो आज रूफ टॉप से गलत एलिगेशन हम पे लगा रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं, उनका एताब भी झेलना पड़ा, उनका जुल्म का सामना करना पड़ा। जो मेरे साथ खड़े रहे, ये बराबर जो वक्फे का आपने ज़िक्र किया, और उनके टांगे हिले नहीं, उन पे भी काफ़ी दबाव आया वो साथियों पे, लेकिन वो बराबर मुस्तैदी के साथ खड़े रहे। ये मैं उनका भी मशकूर हूँ। ये सब एक क्या बताऊँ मैं कि अल्लाह की तरफ से ही मैं शुक्र अदा करता हूँ कि सब्र और जुरात और हिम्मत के साथ हमने काम किया, और आखिरकार अल्लाह ताला ने हमको वो दिन दिखाया जिसकी हम तमन्ना कर रहे थे। जवाब ना दें उनकी मर्ज़ी है। मैंने तो बार बार कहा, अपने तकरीरों में मैंने कहा, मैं मरहूम मुफ्ती साहब का काफ़ी एहतराम करता हूँ, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फ़रमाए। महबूबा जी को अपनी बहन मानता हूँ। सियासी तौर तो हम अलग है, लेकिन ऐसे तो मुझे उनका काफ़ी एहतराम है। लेकिन बदकिस्मती से उनकी 3rd जनरेशन में मुझे लग रहा है कहीं परवरिश की कमी है कि उनको उसूलों पे उनको उसूल नहीं सिखाए गए कि अपने लोगों के साथ किस तरह बात करें। जो नाशाइस्ता अल्फाज मुसलसल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पे गलत इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मैंने लोगों को ये भी कहा कि 28 साल के बाद हमने जीत हासिल की, और मुझे पूरा यकीन था। मैंने पहले ही पोस्ट भी इशू किए और यही कहा कि हम नाम लेवा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें फ़तह मक्का याद रखना चाहिए, जहाँ के नबी ने, हमारे रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तह किया, उन्होंने उन लोगों को भी माफ़ किया जिन्होंने उनको तरह तरह की इज़्ज़तें पहुँचाई। उन्होंने हुंद को माफ़ किया, अबू सुफियान की बीवी को माफ़ किया, जिन्होंने उनका सबसे प्यारे चाचा हज़रत हमज़ा का कत्ल किया हुआ था और उनके सामने किया था। तो मैंने यही कहा कि हमें जितना इन्होंने तकलीफ़ें दी 28 साल में, जितना तंग किया, जिस वक्त हमारी जीत होगी आप किसी के साथ हाथ नहीं लगाएंगे, और वादा लिया था मैंने। लेकिन उसके बावजूद लोग जश्न मना रहे हैं। इनको पता नहीं कौन फ़ोन कर रहा है, उनकी आपसी रंजिशें हैं,
तो अब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बेसलेस एलिगेशंस हम पे लगा रहे हैं और मुसलसल लगा रहे हैं। उसके लिए मैंने मीडिया का इस्तेमाल नाशाइस्ता मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, नहीं करना चाहिए था, मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, तो मैंने कानून का सहारा लिया। नोटिस इशू हुई है, जवाब देंगे, माफ़ी मांगेंगे, उनकी मर्ज़ी है, ना मांगेंगे कानून फैसला करेगा। सरकार बनेगी इंशाल्लाह। हमें सबसे बड़ा चैलेंज है, हमने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं हमें इंशाल्लाह उन पे एक एक करके काम करना है। हमें रियासत का दर्जा बहाल कराना है। हमें जो यहाँ से जो हमारी बेइज्जती हुई है वो बेइज्जती के लिए हमने लड़ना है। जो स्पेशल स्टेटस था उसके लिए हमने काम करना है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी पार्टी का जो मेन एजेंडा है वो ऑटोनॉमी है। हमें ऑटोनॉमी के लिए काम करना पड़ेगा, चाहे हमें 10 साल क्यों ना लगे, हमें 20 साल क्यों ना लगे, लेकिन हमें उस रास्ते को, उस टारगेट को हासिल करना है। क्योंकि 370 जो था, ये जो हमें स्पेशल रियायत मिली थी, ये किसी गैर मुल्क ने हमको नहीं दिया था, ये यहाँ के आईन में था। हिंदुस्तान के आईन ने हमें कश्मीर को, जम्मू कश्मीर रियासत को उस वक़्त जो इल्हाक हमने किया, दो कौमी नज़रिया पे शायद हमारा इल्हाक कहीं और होना चाहिए था, लेकिन हमारी लीडरशिप ने दानिस्ता तौर एक सेकुलर हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया उस वक़्त, और हालात के ख़िलाफ़, टाइड अगेंस्ट द टाइड, तो उसी को फाउंडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने उस वक़्त माप लिया और उन्होंने हमको स्पेशल स्टेटस दिया, खुसूसी रियायतें दी, जिनको बदकिस्मती से एक कम्युनल एजेंडा के तहत आज से 6 साल पहले छीना गया। तो हमें उनको वापस लेने के लिए भी हमें जद्दोजहद करनी है और हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। जो वादे हमने मैनिफेस्टो में किए वो पूरे करने हैं। हमें अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ तवज्जो देनी है। हमें यहाँ बिजली का मसला, बिजली फ़ीस इतना बढ़ाया गया, उसकी तरफ तवज्जो देनी है। हमें बेरोज़गारी की तरफ तवज्जो देना है। हमें उन नौजवान बच्चों को जो जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई के इंतज़ाम करने हैं, और बाकी जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी डेवलपमेंटल इशूज़ हैं, वो उसके लिए हम काम करेंगे। हल्का इंतखाब बेजबेड़स मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये असम्बली इंतखाबन हंदन नतजन तो इन वाल पंचायत इंतखाबन हवाले कथन दाल दिन आव तत वर्करन पर जोर दिन आमुत तम गन चुकसान मेहनत करन युत जन पंचायत इंतखाबन दौरान लूक भारतीय जनता पार्टी हंदिस हकस मज वोट दिन। यल जन पार्टी सीनियर लीडर सोफी यूसफन वोन जे असम्बली मज भारतीय जनता पार्टी तरफ मजबूत अपोजिशन जमात हुंद हक अदा करने युत जन आम लूकन हंद मसला अत वतलावन यन। के वोट शेयर तो बहुत ज़्यादा है कश्मीर में। आज का जो वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा कश्मीर में हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो 30 सीटें जम्मू में ली हैं, 29 हमने अपने सिंबल पे ली, 1 हमने इंडिपेंडेंट ली, और ये भी फैसला कुल नतीजा है। और जब भी सरकार कोई फैसला करेगी हम मजबूती से अपना अपोजिशन में रह के, चाहे वो लोगों के हक में हो तो हम साथ देंगे, लोगों के हक में नहीं होगा हम उसका विरोध करेंगे। बड़ी मजबूत अपोजिशन होगी। हमने 4000 वोट लिए हैं और 15 दिन में हमारी कंपेनिंग में हमने 4000। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वर्मल तरफ आज टाउन हॉल टंगमर्ग मज इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क हवाले प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज अथॉरिटी हंदो जिम्मेदारों अलाव रजाकारों तो मुकामी लूकों शिरकत कर। अत मौके पे ये नागनी आफतन हवाले कथन दाल दिन आव तत तकरीब मज मौजूद लूकन अमे हवाले तरबियत फराहम करना आमज। यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव नागनी आफतन दौरान कम खोत कम जानी तो माली नुकसान सपदनस हवाले यिथन प्रोग्रामन हुंद साज करने यिवान। जैसा कि आपको पता है कि 13 अक्टूबर जो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन डे मनाया जाता है, तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की तरफ से यहाँ तहसील टंगमर्ग में एक प्रोग्राम मुनक़द किया। एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है जिसमें हम अपने जो फील्ड एजेंसी है, नंबरदार चौकीदार है या पटवारी साहिबान है, बाकी एम्प्लॉयज़ है, वॉल्टियर्स है, स्टूडेंट्स है, सिविल सोसाइटी के बंदे हैं,
उनको हम तरबियत देते हैं कि अगर अल्लाह ना चाहे कभी कोई नागहानी आफत आ जाए तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, किस स्टेप से हम मिनिमाइज़ करें डैमेज को, चाहे जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो। हम इनको पहले ही प्रिपेयर करके रखते हैं, अवेयर करके रखते हैं कि अगर किसी भी वक्त कोई भी आफत आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कौन से स्टेप्स करने हैं, किसको फ़ोन करना है, या हमें कैसे इन्फॉर्म करना है, या आपको कैसे ये जो जब भी कोई आफत आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करें, या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है हम 24/7 इनके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो गवर्नमेंट की यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़न अवेयर किया जाए, उनको तरबियत किया, उनको ट्रेन किया जाए कि किसी भी नागहानी आफत में कैसे उनको काम करना है। हमें ये अवेयरनेस मिली, जितने भी नंबरदार के टंगमर्ग के चौकीदार साहबान और भी थे इधर तहसील ऑफिस के, कि जितने भी ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट डे था, इसके हिसाब से अगर अल्लाह न करे किसी गांव में जो भी खुदा न खासा कोई डिज़ास्टर आए तो उसको कैसे मिनिमाइज़ करे। मिनिमाइज़ मीन्स कुदरती आफत को कोई नहीं रोक सकता है, मगर कितना मिनिमाइज़ होना चाहिए, इसीलिए हमें नंबरदारों को बुलाया गया है कि ताकि विदिन नो टाइम यू हैव टू इन्फॉर्म द ऑफिस, इन्फॉर्म डिज़ास्टर ऑफिस, SDRF। तो इसी के चलते हमें यहाँ पे बुलाया गया, तो उसको अवेयरनेस दी गई कि कैसे इसको मतलब कम से कम होना चाहिए, विंटर हो समर हो कुछ भी हो, पर इसके लिए कम से कम मिनिमाइज होना चाहिए। तो इसीलिए हमको बुलाया गया है ताकि इसका पूरा अवेयरनेस हमें हो। अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की तरफ से और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को अवेयर किया। जैसे हर साल 13 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है, तो हमने इनको ये बताया कि कैसे लोगों को कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, या लोगों को कैसे इसमें लोगों की एक मदद करनी चाहिए कि जैसे भी कहीं नागहानी आफत हो, जैसे सैलाब हो, ज़लज़ला हो, कहीं भूचाल हो, तो इसमें हमें कैसे लोगों को हेल्प करना चाहिए। इनको बताया गया कि कैसे किसी भी डिपार्टमेंट में आपको कैसे फ़ोन करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए। हमने इसमें एक्चुअली हमारे ये वॉलंटियर्स भी थे, सोसाइटीज़ के बंदे भी थे, सबको बताया गया कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस हवाले से हमने इनको फुली प्रिपेयर किया कि हमने कैसे लोगों को मदद करनी है। जैसे कहीं भी ये नागहानी आफत कभी भी हो सकता है, इसमें हमने इसमें जानी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमने ये करना है कि कैसे कम से कम नुकसान हो जाए। इस हवाले से हमने इनको ये तरबियत। खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील। गुलशनपुर त्राल के लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमद यदवे इलाकस में जंगली जानवर बस्ती मज दाखिल सपदन सहित लूकन मज खौफ दहशत पद सपदमुत तो अमि हवाले वाइल्ड लाइफ महकम के जिम्मेदारन कई आई फिर जान दिन आई, ताहम आज ताम कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लोग आवलनस मज हेना आय। मुकामी लोगों तरफ महकम के जिम्मेदारन मांग करना आमद जंगली जानवर काबू करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने युत जन लूकन मज पद सपदमुत खौफ दहशत दूर करने। एक आदमखोर तेंदुए ने एक कमसिन बच्ची को अपना शिकार बना लिया, तो उसके बाद हमने वाइल्ड लाइफ वालों को भी कॉल किया। वो तब से आज तक उन्होंने केज लगाए हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो तेंदुआ अभी तक काबू में नहीं आ पाया। तो पूरे गांव में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया है। उसके बाद जो है कुछ यहाँ के जो नौजवान हैं जो खेलने जाते हैं या खेतों में जाते हैं, आमने सामने उनका मुकाबला उससे हो गया, तो अल्लाह के रहम करम से वो बच गए। तो यहाँ पर उसके बाद उन्हें कुछ जानवरों को भी जो है अपना शिकार बना लिया। तो इस वक्त यहाँ पर ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि कोई भी बंदा जो है वो अकेले खेत पर नहीं जा पा रहा है। और दूसरी जो हमारी जो एप्रहेंशन है वो ये है कि जहाँ पर ये वाक़ा पेश आया उसी रास्ते पे हमारा एक प्राइमरी मिडिल स्कूल है, तो वहाँ पर बच्चों का आना जाना रहता है। तो पिछली बार हमने अब यहाँ पर उन बच्चों के लिए ये किया था कि टीचर्स को हमने कहा था कि इन बच्चों को आप असेंबल कीजिए किसी जगह पर, तो उसके बाद जो है उनको अपने साथ स्कूल लीजिए। लेकिन स्कूल जो है वो इस हालत में है कि उसकी फेंसिंग भी नहीं है। कुछ रोज़ कबल यहाँ तेंदुए ने हमारी एक बच्ची को हलाक कर दिया। इसके बाद ये घोड़ा भी उसने हलाक कर दिया, और कुछ कुत्ते भी जहाँ घूम रहे थे उनको भी हलाक कर दिया। हम वाइल्ड लाइफ की बहुत ही मशहूर हैं,
उन्होंने यहाँ वो ट्रैप भी लगाया, मगर वो यहाँ रात को भी रह गए 4-5 दिन, मगर तेंदुआ काबू में नहीं हुआ। तो उनका भी यही मुतालबा है कि हमें हायर अथॉरिटी से ऑर्डर मिलना चाहिए कि या तो तेंदुए को ऑन स्पॉट शूट ऑन साइट का ऑर्डर मिलना चाहिए, तब तक हम तेंदुए को हलाक नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जब तक हमें हायर अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं मिलेगा, मगर तब तक हमें भी प्रॉब्लम होगी। गाँव वालों की यही शिकायत है कि हम खेत पर नहीं जा सकते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ गाँव वालों को मुश्किल बन गया। तो लोगों की यही गुजारिश है कि तेंदुए का कुछ ना कुछ नई सोल्यूशन की जाए, तो ताकि ये अपने बच्चे नहीं स्कूल जा सके और लोग खेत पर आराम से जा सकें। जालूरा सोपर के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज रंग रंग लूक मुश्किल मज हन आमत कई फिर हुकामन अमे हवाले जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने yin। सरस ब्रोह कन सोन तार खंब पे वनस गए डिपार्टमेंटस वुक तक बोजन डिपार्टमेंट सोन कह वो मेहरबानी करान डिपार्टमेंटस अपील करान डिपार्टमेंटस अगर अस लायक रोदमुत कह मेहरबानी कर वनस चारवाई तमत लगा पावरस मामूली पावर अगर कुछ सात वैसे हवा जिप ये कर तो यमो कर्म ये जोल्टस फाल्ट सच जोल्टस फाल्ट 2-3 दोन मुश्किल वनस ये खास कर तार यु पावर जिप कुछ सात त्रावान अत फाल्ट आमुत पावर पत कन निमुत बोड़ बार फाल्ट जोल्टस मज यह हस्पताल पे मामूली अगर बच्चे बेमार कह चीज बेमार पे ये पे सोपर ग मगर ये जोल्टस मज यह फैसिलिटी कहें मुश्किल गसन हल गो गोडनुक माल जलरा हसीनाबाद कॉलोनी जनाब हस्पताल जबरदस्त परेशानी हस्पताल फैसिलिटी ये कहें दुगी कत बिजली हज अत कह लिमिट यम सात मर्जी गम सात त्रा सात मिलान फीस बदस्तूर पेवान भर तथ कह रहल गवर्नमेंट तरफ मिलान कहें लिहाजन कर गुजारिश कि यह कत वात तुम हुकमन तन कि गोस ये इस्तेसाल गसन कहें यह जनाब सही गुजारिश कि उम्मीद कि नव सरकार आय अत पे उम्मीद कि तो नाजरीन अत वोत खबरनामा अंत योदवे जिंदगी रूज पगह 4 बजे सपद तुह बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल।